program on the secular traditions in Indian music and poetry, and basically a slice of India's rich heritage. And as we recall the fond memories of CIE as a premier institute of education in independent India and its unique history, around which we had a very interesting panel of speakers on the 19th of our foundation day, we are organizing this music program which traces India's traditions of secular poetry and music. And I think all of us would agree to the fact that people of India have lived in peace and harmony over the years, and despite differences of all kinds, religion, language, diverse traditions of people of India, we have been able to contribute to build a very rich composite culture in our part of the world. And this rich culture is reflected the best in literature, poetry, and music. So this program, which is being organized today by Professor Shubhendu Ghosh, is a musical journey through India's traditions of secular poetry across different historical time periods. So beginning with the 13th century to the contemporary times. It was a program proposed and developed by Professor Shubhendu Ghosh, and it's based on Hindustani ragas and other forms of genres of music, including folk music. And the narratives are based around some of the most iconic poetry and music figures, tall figures we've had in our history, including Hazrat Amir Khusro, Kabir, Mia Tansen, Bulle Shah, Lalan Fakir, Nazim Akharabadi, and Ram Prasad Bismil, Faiz Ahmad Faiz, and Rabindranath Tagore. This is actually a very small effort to highlight the poetic genius of an Indian poets and to pay tribute to those who have dedicated their lives through music and poetry for a secular India. And I would like to now sort of introduce Professor Shubhendu Ghosh, who is has actually studied with late Ustad Hafiz Ahmad Khan of Rampur Sahaswan Gharana and late Pandit Ramesh Nandakarni of Bombay of the Bhendi Bazar Gharana. Shubhendu actually has several albums to his credit, Colors of Passion, for example, Khwabe Seher, Sabrango Ka Samavesh, etc. And he's been the founder and the director of cultural organizations like Pratidhwani and Sangwari and the fusion music group based in Germany called Dhun. He's performed live and television audiences in Germany, Austria, Poland, Slovenia, UK, USA, and everywhere. And Professor Shubhendu has also actually been a scientist and our colleague at the University of Delhi in the South Campus. He's been at the Department of Biophysics and has recently retired from there. He's also taught in Hyderabad, and his work involves the integration of multidisciplines of neurophysiology, physics, computer science, psychology, and musicology. And he's been a scientist trained in research from Jawaharlal Nehru University at New Delhi. Professor P.K. Basant will be accompanying him. Professor Basant is an ancient Indian historian based in Jamia Millia Islamia, and I think his knowledge of history helps the musicians to sort of look at different genres of music across different time periods. I think we need to remind ourselves through this program as we pass through a very difficult period of communal tensions and violence and polarization of our society, that we have a very deeply secular commitment and a celebratory nature of our diversity. And I do hope very sincerely that this short program of an hour and a half will touch the finest sensibilities of our existence as an institute of education and as a society. And I think it will hopefully invoke the aesthetic in us and qualities that make us human,
caring, and beings that care not only for ourselves and others, but also for the species and the environment that is so much in danger today. We should, in fact, through this program, try and go back into our history through music and through poetry to understand who we really are. So I thank Professor Sinha very much for enabling this to happen. And my sincere thanks to Bindu Ghosh, to Professor Basant and his team, who he will then introduce later to us, for agreeing to be amongst us and offering us this tribute. Thank you very much. These evocative lines of Faiz Ahmad Faiz capture the essential dilemmas of our time. It's the moment of happiness, it's
it's a moment of joy, it's also a moment of our sorrow. We are living in a time where every step seems to be an invitation to joy and sorrow at the same time. I remember the lines of Dickens. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We don't know what steps we are taking. I always remember those lines of a French writer who said, I shall kill that man who says being 18 is the best time of one's life. Probably it's the most difficult, most cruel time of one's life. इस तरह के शब्दांश और उद्धरण हमारी जिंदगी में, हमारी किताबों में बार बार आते रहते हैं। लेकिन जब हम इन परंपराओं की बात करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है, ऐसी परंपरा का मतलब क्या है? क्या ऐसी परंपरा का भी एक इतिहास है? क्या उस इतिहास को भी जानने की जरूरत है? कुछ ऐसे ही सवालों को पूछते पूछते आज से काफी साल पहले, लगभग 50 साल पहले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने कुछ प्रगतिशील गीतों को गाने और इकट्ठा करने की कोशिश की। साथ साथ वो लोग न सिर्फ बड़े कवियों के गीतों को इकट्ठा करते थे, वे लोग सामान्य लोकगीतों को, हो सकता है कोई भीख मांगते हुए सूरदास हों, उनके गीतों को भी इकट्ठा करते थे। और इन गीतों के माध्यम से जन्म हुआ प्रतिध्वनि का और शुरुआत हुई एक ऐसी यात्रा की जो अब तक खत्म नहीं हुई है। क्योंकि हम जब इन चीज़ों से जुड़े तब हमारे सामने बहुत सारे नए सवाल उभरे, बहुत सारे खूबसूरत जवाब भी उभरे। और उसी यात्रा के माध्यम से हम आपको ले जाना चाहते हैं लोकगीतों की परंपरा में और इतिहास की परंपरा में। इतिहास के बारे में अक्सर हम ये सोचते हैं कि इतिहास में क्या चीज़ें आनी चाहिए। जिन इतिहासों से हम परिचित हैं उनमें अक्सर राजाओं महाराजाओं की कहानियाँ रहती हैं, उनकी लड़ाइयाँ, उनका शासन प्रबंध, इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ते रहे हैं। लेकिन अगर किसी पेंटर ने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर उकेरी जिससे कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदल गया, किसी ने एक खूबसूरत संगीत छेड़ा और उससे हमेशा के लिए गाने के नए तरीके उभर आए, इन सारी चीज़ों के बीच में क्या इतिहास का भी कोई समावेश है? क्या ये भी इतिहास है? और इन चीज़ों में हमें जो बात नज़र आती है वो नज़र आती है कि लोक परंपरा इन चीज़ों को कैसी देखती है। राजा महाराजा भुला दिए गए, उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए। लेकिन जिन गीतों को उस जमाने में लोगों ने लिखा, गाया, वो गीत अभी भी लोगों की जुबान पर थिरकते हैं। अनजाने में, अनकहे से अनपढ़ महिलाएं वो गीत गाती हैं जो किसी जमाने में अमीर खुसरो ने गढ़ा था। अमीर खुसरो, जिनका नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे
इतिहास में पहले इंसान थे जिन्होंने अपने को हिंदवी कहा, अपने मुल्क का कहा, जिस मुल्क के साथ हम अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। लेकिन अगर हमें राष्ट्रवाद की सीख लेनी है तो शायद अमीर खुसरो से सीखना होगा। अमीर खुसरो जो कि तुर्की मूल के थे, जो कि फारसी और हिंदुस्तानी में गीत लिखते थे, जो कि मुसलमान थे और जो कि अपने को हिंदवी कहते थे। इतनी चीज़ों को मिला पाना, इतनी अलग अलग चीज़ों को एक साथ कर पाना और उसको इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर पाना, मुझे तो लगता है कि कोई दूसरा अमीर खुसरो नहीं हुआ। यही नहीं, कई लोगों का ये मानना है कि अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का इजाद किया था, जिसे आज हिंदुस्तानी संगीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जब हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि दुनिया में हिंदुस्तान की जो महत्वपूर्ण क्रिएटिव देने मानी जाती हैं, the most creative aspects of the Indian civilization, they are, many people will say that the Hindustani music is the most creative aspect of the Indian civilization. और खूबी ये है कि इस खास विधा में हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसा कोई फर्क नजर नहीं आता। यहाँ पर घरानों की बात की जाती है, यहाँ पर गीतों की बात की जाती है। उदाहरण के लिए सेनीय घराना, उसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खान ने और उनके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिष्य हुए रविशंकर, एक मुसलमान एक हिंदू। और इस तरह के हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं। हम जब याद करते हैं बड़े गुलाम अली खां को, उसी समय हम जोशी जी को भी, भीमसेन जोशी जी को भी याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं? उनकी खूबसूरती और उनकी क्रिएटिविटी के लिए। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उस इतिहास को, उस मिली जुली संस्कृति को देखते हुए हम लोग एक गाना पेश कर रहे हैं जिसे अमीर खुसरो ने लिखा था। और अमीर खुसरो के इस गीत की खास खूबी ये है कि इसकी एक पंक्ति फारसी में होती है तो दूसरी पंक्ति हिंदवी या हिंदी में होती है। और देखिए उन दोनों को मिला करके कितना खूबसूरत एक संगीत तैयार हुआ है। तो पेश है शुभेंदु द्वारा गाया हुआ ये गीत। हम अभी 4 लोग हैं जो प्रतिध्वनि से जुड़े हुए हैं, शुभेंदु, बसंत, विवेक और अभिजीत। तो पेश है शुभेंदु का गीत।
मकुन तगफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां ज़िहाल मिस्कीन मकुन तगफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां किताब हिजरान नदारम जान किताब हिजरान नदारम जान नले हुकाए छतिया ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां किताब हिजरान दराज नले होता है लगाए छतिया ज़िहाले मिस्कीन शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ रोज़े वसलत चूं उम्र कोता शबान हिजरा दराज चूं जुल्फ रोज़े वसलत चूं उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं सखी पिया को जो सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया ज़िहाले मिस्कीन मकुन तगफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां बहक के रोज़े विसाल दिल पर के दाद मारा फरेब खुसरो 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 के दाद मारा
फरेब खुसरो खुसरो बहार के रोज़े विसाल दिलबर की दाद मारा फरेब खुसरो सबीत मन के दोराए रखूं सबीत मन के दोराए रखूं जो जाके पाऊं पिया की खतिया से हाले मिस्कीन मकूतगाफुल दोराए नैना बनाए बतियां किताबे हिजरा नदारम जान न ले हुका है लगे छपिया से हाल मिस्किन मकूतगाफुल दोराए नैना बनाए बातियां हमारी संगीत की यात्रा का अगला चरण कबीर से जुड़ा हुआ है। कबीर दास जो हिंदुस्तान के इतने सारे इलाकों में अपने माने जाते हैं कि ये मुश्किल हो जाता है कि उन्हें माना जाए भोजपुरी बोलने वाला, उन्हें माना जाए पंजाबी बोलने वाला, उन्हें माना जाए मालवी बोलने वाला या उन्हें माना जाए हिंदुस्तानी बोलने वाला। लगभग हर भाषा में उनके तमाम दोहे लोग बड़े प्यार से दोहराते हैं। और खूबी ये है कि कबीर ने इतना तीखा प्रहार किया हमारे देश में, हमारे समाज में प्रचलित आडंबरों पर, किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन लोग तब भी उनको याद करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि कबीर हमारी लोक परंपरा में छुपे हुए प्रतिरोध और गुस्से का एक रूप है। उस लोक परंपरा ने कबीर को पैदा किया है, न कि कबीर ने लोक परंपरा को पैदा किया है। मालूम नहीं कौन सी बात ज्यादा सच है, लेकिन ये निश्चित है कि जो व्यक्ति लिख सकता था मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, या लिख सकता था आसन मारी मंदिर में बैठे काम जराए जोगी हुए गले भेजड़ा, या इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत, ऐसे दृष्टांत जहां पर कहा जाता है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, हर पर उन्होंने हमला किया और हर इलाके के लोग उस हमले को समझते हुए भी बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से और बड़े फख्र से उनके गीत गाते हैं और उनके गीत में अपना प्रतिरोध, अपनी पीड़ा और अपने सपने संजोते हैं। तो पेश है कबीर दास का एक गीत जो कि ज़्यादा निर्गुणी माना जाता है। समय होता और ये दूसरा समय होता जहां हम सब लोग एक दूसरे के आमने सामने होते, तो आपसे पूछ करके हम लोग कबीर का भजन पेश करते, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें हम अपना चुना हुआ एक गीत आपको सुनाते हैं। तो प्रस्तुत है कबीर। आ
रे रे नू आ ये ना मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे, 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 ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी भय तो तुरत ही मिले, हाँ खोजी भय तो तुरत ही मिले, हाँ पल भर की तलाश में, मोको
देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा। कबीरा कबीरा कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुन भाई साधो, सब सांसों की सांस में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हमारी संगीत का अगला चरण एक ऐसे नाम से जुड़ा है जो कि हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। वो नाम है तानसेन का। When we talk about the European tradition of music, which is another great and creative tradition, we think of at least three names: the names of Bach, Mozart, and Beethoven. But when we think about the Indian tradition, there have been any number of great names, but that pinnacle of glory, that point of final achievement remains तानसेन। अकबर के दरबार में गीत गाने वाले तानसेन का स्थान हमारे सभ्य समाज में, हमारी संगीत परंपरा में वैसा है कि हिंदुस्तान में जब कोई संगीतकार गीत गाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो इतना अच्छा गाए, इतना अच्छा गाए, इतना अच्छा गाए कि तानसेन बन जाए। तानसेन ने एक खास, कई रागों का आविष्कार किया था, उसमें एक खास राग जिसके लिए उन्हें बार बार याद किया जाता है, जिसको कि बहुत सारे संगीतकारों ने गाया है, वो है राग दरबारी। तो ये शुद्ध क्लासिकी परंपरा का राग है। हम उस गीत को
उनके ज़माने के गीत को पूरा नहीं गाएंगे, उसका एक छोटा सा अंश जिससे कि उस परंपरा की खूबसूरती का अंदाज हो पाए, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और ये जो गीत है वो उन्हीं के ज़माने का है, उनके ही एक शागिर्द ने उसको गाया था और उसको अभी शुभेंदु पेश करेंगे। माफी चाहता हूँ, आवाज का तो कोई भरोसा नहीं रहता है और मौसम भी बहुत ठंड होता जा रहा है, तो बीच बीच में गला अटक रहे हैं, गुस्ताखी माफ। राग दरबारी जो है आधी रात का राग है। अब जाहिर है कि अभी तो 5 ही बज रहा है ना, कितना? हाँ, 4 बज रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी राग जो है वो बिल्कुल टाइम सेट होता है, समय समय के साथ, प्रहर के साथ बदलता है। लेकिन इस प्रोग्राम के खातिर हम सोच लेते हैं अभी आधी रात है और गाते हैं। और ये जो साज है हारमोनियम, ये एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, ये हिंदुस्तानी साज है ही नहीं, अभी एडाप्टेड हो गया। लेकिन हमारा जो संगीत है, हमारी जो संगीत परंपरा है, शास्त्रीय संगीत, उसमें ये चलता है तानपुरा। इसलिए मैं इसको नहीं बजा रहा हूँ, मैं तानपुरा से ही राग दरबारी पेश कर रहा हूँ।
अर्ज रहत तोर कमा। That was a part glimpse of ख्याल, विलंबित ख्याल, जो सही माने हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसकी खास चीज है विलंबित ख्याल। लेकिन समय के अभाव के कारण हम पूरा तो नहीं गा पाए। हम थोड़ा सा इसका आभास आपको दिए हैं। अब बसंत जी आगे बढ़ेंगे। हाँ, और विलंब ना हो इसलिए हमें अपनी यात्रा, संगीत की यात्रा आगे बढ़ानी है। और इसी यात्रा में हम लोग अब दिल्ली से थोड़ा सा दूर पंजाब की तरफ चलते हैं। वहाँ की जो गाने की परंपरा है वो काफ़ी खुशी वाली परंपरा है, काफ़ी उछल कूद की, उल्लास की, हंसी की परंपरा है। और उस परंपरा में बुल्ले शाह का नाम लिया जाता है, जो 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान में समाज उभर रहा था। उसमें दो परंपराओं की बात की जाती है, एक भक्ति परंपरा और एक सूफी परंपरा, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व इस बात को दिया गया कि ईश्वर के पास, खुदा के पास आप कैसे दिल से जाते हैं। जब तुलसीदास कहते हैं, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो वही शब्द बदल कर करके कभी वो अवधी में नजर आते हैं, कभी ब्रज भाषा में नजर आते हैं, कभी पंजाबी में नजर आते हैं। और खूबी ये है कि उसी तरह के भाव कभी सूफियों के साथ निकल करके आते हैं, कभी भक्त संतों के साथ निकल करके आते हैं, कभी विद्रोहियों के साथ निकल करके आते हैं। तो जब हम लोग दमादम मस्त कलंदर गाने गाते हैं तो उस कलंदर को याद करते हैं, जो कि पंजाब के इलाके में जो एक मिली जुली परंपरा बन रही थी, एक खूबसूरत संगीत की परंपरा और एक खूबसूरत समाज की कल्पना की परंपरा, तो उसका उदाहरण हमें बुल्ले शाह से मिलता है। और बुल्ले शाह की कविता आज तक लोग उनके मज़ार पर जाकर के गाते हैं, उनके गीत गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो एक गाना बुल्ले शाह का।
इश्क नमाज जदों नीती है असा इश्क नमाज जदों नीती है असा इश्क नमाज जदों नीती है असा इश्क नमाज जदों नीती है तदों भुल गए मंदिर मस्जिद है तदों भुल गए मंदिर मस्जिद है असा इश्क नमाज जदों नीती है असा इश्क नमाज जदों नीती है नमाज जद नीती है असा इश्क नमाज जद नीती है असा इश्क नमाज जद नीती है रब दिलां विच रहंदा ओ रब दिलां विच रहंदा असा इश्क नमाज जद नीती है 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 चल बुलिया असी उथे चलिए 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 जिथे सारे ने जिथे सारे ने ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मने ना कोई सानू मने असा इश्क नमाज जद नीती है 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 कदो भुल गए मंदिर मस्जिद है कदो भुल गए मंदिर मस्जिद है असा इश्क नमाज जद नीती है असा इश्क नमाज जद नीती है असा
नमाज जदनी पिए असा इश्क 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 नमाज जदनी गीतों का सिलसिला जब चल निकला है तब हम फिर से एक बार दिल्ली की तरफ आते हैं, एक ऐसे कवि के गीतों के लिए जिनका नाम था रस खान। रस खान ने बहुत खूबसूरत गीतों की रचना की, खुद गाया भी, और ऐसे गीत जो ब्रज भाषा में आज भी गाए जाते हैं। काफी सारे बड़े गायक उनके गीतों को गाते हैं। रस खान कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने कई रचनाएं की। रस खान मुसलमान भी थे, लेकिन उनके मुसलमान बनने में और कृष्ण भक्ति में लोगों को या उस जमाने के लोगों को कोई खराबी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आया। So we have this tradition starting from the earlier period. We talked about Amir Khusro, and it's probably the part of the same tradition where we have Ras Khan, who becomes important in the tradition of classical Hindustani music, and that Hindustani tradition, which has been nourished by any number of voices, any number of compositions, and incredible creativity. So Rasa Khan represents that particular vein of creativity which has continued to nourish the culture of this Hindustani music. So here is your composition by Rasa Khan. फिर से हम हिंदुस्तानी क्लासिकल परंपरा में आ गए। रस खान की जो बंदिश मैं पेश करने जा रहा हूँ वो आधारित है एक राग पर जिसका नाम है पूर्या कल्याण। और जैसे हिंदुस्तानी परंपरा है, इसमें भी मैं पसंद करूँगा बिना हारमोनियम बजा के, और हारमोनियम के बिना ठीक था, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिना वो हारमोनियम के साथ। हारमोनियम में गई थी।
पेश है राग पुरिया कल्याण। आई सब ब्रज गोपलनी, आई सब ब्रज गोपलनी, आई सब ब्रज गोपलनी, आई सब ब्रज गोपलनी। चुटकी गली जमुना जलनान, चुटकी गली जमुना जलनान, आई सब ब्रज गोपलनी, आई सब ब्रज गोपलनी। चुटकी गली जमुना जलनान, चुटकी गली जमुना जलनान, आई सब ब्रज गोपलनी,
आए मिले रसहान ओ चक जाए मिले रसहान बजावत बेनु सुनावत आई सब ब्रिज गोपलनी आई पमाद पमाद पम प आई निरगम प मग मरे ग आई गो मद नि द प मद प म प ग म रे ग आई सब पमाद प मद म प नीर सा गो म प ध नि द प ग म प ग गो न नि ग नि द प ग म प ग म रे ग आई सब ब्रिज गोपलनी आई सब आई सब ब्रिज गोपलनी आई आई सब ब्रिज गोपलनी चिटकी गली जमुना नैनान आई सब आई सब आई सब ब्रिज रस खान के गीत के बाद हम आपको हाई फिलॉसफी और प्योर क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया से थोड़ा सा दूर ले जाना चाहते हैं, एक ऐसे शायर की तरफ जिसका नाम था नज़ीर अकबराबादी, जहां और कवि ऊंची प्रेम कथाओं के बारे में लिखते रहे या ईश्वर के बारे में लिखते रहे, नज़ीर अकबराबादी ने हिंदवी को आम जनता के जीवन से जोड़ने की कोशिश की। उनकी जुबान, उनकी लिखावट में
दिन प्रतिदिन में आगरा के बाजारों में क्या होता था, लोग क्या बातचीत करते थे, होली क्या होती थी, दिवाली क्या होती थी, ईद क्या होती थी, इस तरह की चीजों के बारे में उनके जमाने में लोग उनको कैसे देखते थे, उनके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखने की कोशिश की। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कई गीत लिखे, रोटियां, जिसमें रोटी को लेकर करके एक समूचा गीत बनाया गया है। आदमी नामा, जिसमें कि इंसान को अपनी, जो इंसान के बजाय इंसानों के बारे में बात की जाती है, जिसमें तरह तरह के इंसान कैसे अच्छे कैसे बुरे होते हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है। तो रोटियां जो उनका गीत था, उसको प्रतिध्वनि के साथियों ने कव्वाली के रूप में गाने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं, कव्वाली मूल रूप से सूफी दरगाहों पर गाया जाने वाला गीत था। माना जाता था कि कव्वाली के माध्यम से समा बनती थी, जिससे कि लोग ईश्वर को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, ज्यादा प्यार के साथ याद कर सकें। लेकिन कव्वाली फिर मज़ारों से निकल कर करके पूरे समाज में फैल गई एक खास प्रथा के रूप में। और उसी रूप में जब हम नज़ीर का ये गीत देखते हैं, रोटियां की बात करते हैं, तो उसको कव्वाली के रूप में प्रतिध्वनि की तरफ से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तालियां कौन बजाएगा? जनरली हम लोग जब गाते हैं तो ऑडियंस की तरफ से तालियां होती हैं। अब तो ऑडियंस बेशक ताली बजाएं, हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे ताल से मिला के तालियां बजाते रहें, लेकिन फिलहाल हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम खुद ही कोई बजाना पड़ेगा। तो आप बजाएंगे ताली? कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि फिर से एक बार तारुफ करा देना चाहिए हमारे जो कलाकार हैं। इनको तो आप पहचान नहीं होंगे, प्रोफेसर बसंत, और हमारे साथ आवाज में साथ दे रहे हैं श्री विवेक, और तबले पे हैं श्री अभिजीत आइच।
आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ती है रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां, कितने मजे कितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, 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 करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, 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 ठट्ठा हंसी शराब सनक साकी उस सिवा, ठट्ठा हंसी शराब सनक शाह से उठवा, सौ सौतर है सौ तरह की धूमें मचती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां।
में हो तो फिर कुछ जतन न हो। रोटी जो पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो। मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो। मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो। अल्लाह की भी अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। आंखें परी रुखों से लड़ती है रोटियां। जब आदमी आंखें परी रुखों से लड़ती है रोटियां। आंखें परी रुखों से लड़ती है रोटियां। सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां। सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां। कितने मजे कितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। दिल्ली और पंजाब से हम एक और लंबी यात्रा करते हैं और कोशिश करते हैं बंगाल पहुंचने की, क्योंकि जो परंपराएं यहाँ बन रही थी, मिलती जुलती परंपराएं बंगाल में भी तैयार हो रही थी। वहाँ पर
खास करके एक नाम लिया जाता है, वो है लालन फकीर का। जिस तरह से उत्तर भारत के इलाकों में कबीर को बहुत प्यार और इज्जत से याद किया जाता है, उसी तरह से लालन फकीर की परंपरा को बंगाल की परंपरा में याद किया जाता है। बंगाल में एक खास संगीत की परंपरा रही है जिसे बाउल संगीत कहा जाता है। बाउल लोग गीत गाते हैं। आजकल तो उन्हें वैष्णव धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन हाल तक बाउल गायक अपने को किसी खास धर्म से नहीं जोड़ते थे। वो मानते थे कि उनका जो धर्म है वो मानवता है, वो ईश्वर के प्रति एक ऐसी ईश्वर के साथ एक ऐसा जुड़ाव है जो धर्म के शब्दों की सीमा में नहीं आता है। तो वो अपने को कभी मुसलमान मानते थे, कभी हिंदू मानते थे, कभी वैष्णव मानते थे, कभी दुर्गा के भक्त मानते थे। उन सारी भक्ति की परंपराओं को उन्होंने अपने अद्भुत गीतों से एकात्म कर लिया था, एकीकृत कर लिया था। तो साथ साथ जो खूबी रही लालन फकीर की कि इस बाउल परंपरा में भी उन्होंने समाज के तमाम जो उच्च वर्ग हैं और उनकी जो तमाम कल्पनाएं हैं जाति प्रथा से जुड़ी हुई या धर्म से जुड़ी हुई, उन पर सवाल खड़े किए। और ये सवाल अभी भी हमारे लिए संगत हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और उसके लिए जो जवाब और रास्ते उन्होंने खोजे उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्रस्तुत है लालन फकीर का एक गीत। সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে। লালন বলে জাতের কি রূপ, লালন বলে জাতের কি রূপ, দেখলাম না নজরে। সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে। সুনত দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান। সুনত দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান। বামুন চিনেন পইতে প্রমাণ, বামুন চিনেন পইতে প্রমাণ, বামনি চিনেন কি করে। সব লোকে কয় লালন কি যার সংসারে। জগৎ জুড়ে জাতের কথা লোকে গল্প করে যথা তথা। জগৎ জুড়ে জাতের কথা লোকে গল্প করে
যথা তথা ভোলা মনে রে আমার ভোলা মনে রে লালন বলে যাতে রে পতনা লালন বলে যাতে রে পতনা ডুবিয়েছি সব বাজারে সব লোকে কয় লালন কি যা সংসারে সব লোকে কয় লালন কি যা সংসারে লালন বলে যাতে রে কিরু লালন বলে যাতে রে কিরু দেখলাম না নজরে সব লোকে কয় লালন কি যা সংসারে সব লোকে কয় লালন কি যা সংসারে সব লোকে কয় লালন কি যা সংসারে शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान We all grew up reciting this poem without ever bothering to find out who was the original poet. And that was not an important question. Normally, we associate this song with Ram Prasad Bismil, one of the people who died, who was hanged by the British for his participation in Kakuri conspiracy as such. Ram Prasad Bismil, along with many other people, were hanged in this particular case. Ram Prasad Bismil himself was a poet, and so many of us thought that this was a poem which was written by Ram Prasad Bismil. Many others thought that this poem was composed by another person with similar name, someone called Bismil Ajimabadi. And yet it turned out that this was a poem which was written by Jagdamba Prasad Mishra. So three names seem to have come together. None of us ever thought whether it was a Muslim poem or a Hindi poem, or for that matter, whether it was Urdu poetry or Hindi poetry, because to us, it conveyed the essential aspects of our patriotism, of our commitment to this nation and this society. So I'm not bothered, we are not bothered who were the creators. Probably it's the sentiments and symbols involved in this entire movement that saw the widespread participation of a very large number of people coming from different parts of this country. Somebody could be from Tamil Nadu, somebody could be from Kashmir, somebody could be from Nagaland, in all kinds of places. They sang their songs in different languages, but that song always was a song of togetherness, a song which aspired for liberation. So here is a song which the same words that I recited, it's been sung by Shubhendu. He has composed it. Yes. थोड़ा सा पूछ लेते हैं समय का कितना कब तक
उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। एक राष्ट्रीय आंदोलन चला, एक राष्ट्रीय आंदोलन चला और उसमें कितनों की साझी विरासत का परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अपने आप में वो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उस आज़ादी के बाद कवियों के गीतों में एक नई तरह की संवेदना आई। कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही छूटी। कहीं ना कहीं लोगों ने पूछना शुरू किया, चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, आसमान में कर्फ्यू क्यों है, और जमीन पर छी थू क्यों है। और इन सवालों के जवाब के लिए कवियों ने नए गीत लिखने शुरू किए। हमारे देश में बहुत सारी मुश्किलें अभी भी जारी हैं और उनके लिए वैसे ही संघर्षों की ज़रूरत है जो हमें आज़ादी के आंदोलन के दौरान दिखाई पड़ी थी। उन्हीं तरह के सपनों और संघर्षों को जोड़ते हुए फैज़ अहमद फैज़ ने एक गीत लिखा जिसको कि
हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारी उम्मीदों का गीत है, ये हमारे लिए भविष्य का गीत है, जिसको कि चिपको आंदोलन के लोगों ने गाया था। चिपको आंदोलन के लोगों ने उसको एक अलग ढंग से गाया था। इस गीत को प्रतिध्वनि ने अपने सुरों में बांधा है। तो प्रस्तुत है उर्दू के कवि फैज अहमद फैज की रचना दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। एक सुझाव है कि हमें चूंकि समय की बहुत कमी है, तो इसको सिर्फ हम मुखड़ा गा देते हैं और फिर उसके बाद हम रविंद्रनाथ से खत्म करें। ठीक है? खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे। कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबार वतन। और इन संघर्षों का रास्ता बहुत मुश्किल का रास्ता है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है उसने कई बार हमें रास्ते दिखाए हैं। वैसे ही जैसे कि पिछले 2-1 वर्षों में बहुत सारे विद्रोह होते रहे हैं, विद्रोह मुखर होते रहे हैं, और वो विद्रोह जो है महिलाओं और छात्रों की आवाज़ में सामने आए हैं। लेकिन ये बहुत कठिन रास्ता है, और शायद इसी कठिन रास्ते को, इन्हीं कठिन परिस्थितियों को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था। हम सब के लिए कहीं ना कहीं टैगोर का ये गाना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। उस अकेलेपन को दूर करने का एक गाना अभी शुभेंदु सुना। बहुत पॉपुलर गीत है और हमें पता है कि आप सबको ये गाना आता है, तो ये आप हमारे साथ गुनगुनाइए। बशर्त मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब हमारे साथ गा रहे हैं। गाइए। परिचित है ना गाना? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে So we end our program in the hopes that Rabindranath Tagore had raised when he said, "Their mind is without fear," and that will unleash creativity. Thank you all. Thank you all the people who have invited us, and thank you all the listeners. I hope they sing some of these songs. इससे हम बिछड़े हम तहे दिल से जो ऑर्गेनाइजर हैं खास तौर पे प्रोफेसर पूनम बत्रा और डॉक्टर महिमा छाबरा और बाकी सारे जो लोग हमारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में मदद की है, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे अलावा हमारे साथी जो कलाकार हैं, श्री अभिजीत आइच, विवेक और प्रोफेसर बसंत, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं, उससे अलावा भी बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम में मदद की है। कैमरा के पीछे आज लगातार जो हमें मदद कर रहे हैं और जिसके बिना हम आज प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बीच में तशरीफ ले आए। प्रोफेसर देवप्रिय चौधरी जो जेएनयू में प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी के, लेकिन कंप्यूटर एक्सपर्टाइज इतना अच्छा है देवप्रिय चौधरी, तो इनके बिना आज हम ये कार्यक्रम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वेबिनार कार्यक्रम में खासतौर पे म्यूजिक कार्यक्रम में बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है। ऑर्डिनरी फोन से या आईपैड से हम ये प्रोग्राम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं और इसके बहुत तामझाम है, तो उनके बहुत ज़बरदस्त मदद की है और मुझे लगता है कि हमारा ट्रांसमिशन सही हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए विदा लेना चाहता हूँ। आदाब, नमस्ते, बाय बाय। Thank you, Shubhendu. Thank you very much, Basant and the entire team. I'd like to invite Mahima to please present formally a vote of thanks for this event. Yes, ma'am. It was absolutely mesmerizing. Thank you so very much, Professor Shubhendu, and to all his group. We could almost walk through, and it was a perfect delight, I would say. Thank you so very much to all the other members also who joined us on YouTube as well as Zoom. And looking forward to a long weekend, and wish you Merry Christmas in advance and a very Happy New Year, too much in advance. So I hope and wish for good health for everyone. From CI, on behalf of CI, would like to thank each one of you. Thank you. Thank you. Thank you very much.